Hello, dear students. Welcome to today's class. Children, we are carrying on with the last chapter. Yes, this last chapter is the chapter which is dealing with the 18th century political formations where the Mughal Empire was finishing and other empires were coming up. Which were these other empires? पहले तो हमको ये समझना है कि कौन कौन से ये empires हैं. Last class में also we have discussed. Just one statement for your revision. One reminder that is there is we have talked about Hyderabad, Awadh and Bengal. तीन तो independent states हो गए थे who have declared their independence from the Mughals. इसके बाद हमने जिसका जिक्र किया था that was the Watan Jagirs. Yes, dear students, the Watan Jagir. Got it? Next that we have discussed, जिस चीज के बारे में हमने बात की थी that was the last class में that we have discussed is about the Sikh. How did they form their Khalsa Panth? The pure people, their missile, their group and their power. सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था. Powerful people and where we had stopped. लास्ट में हमने जहां पे स्टॉप किया था देयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द महाराजा रंजीत सिंह and how he had established himself and how he had set up his empire set up his capital in Lahore. Now what we are talking about is we are talking about the next people. ये क्या था? Sikh were the people who were staunch enemies of the Mughals. Mughals को ये बिल्कुल भी कुछ नहीं समझते थे. They never wanted that the Mughals should interfere in their work. किसी भी तरह से इनको मुगल इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं था. Okay, so what we are discussing about is that we are talking about the next people who have established themselves in a very proper manner against the Mughals were the Marathas. Please understand about the Marathas. Got it? These Marathas kya tha? They were the regional kingdoms and against the Mughal rules they have established themselves very powerfully. Okay, when they have established themselves powerfully, they were very sure they have to establish an independent kingdom. Okay, their sustained position was there, a powerful regional kingdom. It was a powerful regional kingdom क्योंकि regional kingdom is there, power is there and it was arising out of a sustained opposition to Mughal rule. Regional kingdom and arising out of अब क्या हो रहा था? Opposition to the Mughal rules arising out of sustained rule of क्योंकि sustained opposition to the Mughal rule, sustained opposition. अब what is sustained? आप sustained का मतलब पूछोगे. Of course, children, it is opposition of Mughal rule. Sustained means जो बहुत लंबे समय तक चलता है. A system, a government, a group that exists for a very long time. That is sustained.
ओके, मुगल रूल के खिलाफ इन्होंने अपनी बगावत छेड़ दी थी, इन्होंने अपना बिगुल बजा दिया था। एंड दे वेर द वंस who were giving good challenge to the Mughals. They were giving tough competition to the Mughals. Shivaji, one of the very big rulers, he carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families. Okay? शिवाजी का पहले, जब भी हम मराठास की बात करते हैं, हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? शिवाजी की. So Shivaji carved out a stable kingdom. बहुत स्टेबल था, स्टेबल किंगडम. ऐसा नहीं था कि कोई भी मराठास को हिला सकता था. ही वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन. शिवाजी की तो वीर गाथा इतनी फेमस है. I mean, his brilliance and his greatness is known to people all over the world, believe me. So he carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families. Got it? ये जो पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थे, इनको देशमुख कहा जाता था. देशमुख. अब इसमें क्या थे? Who were these people जो कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे? The people who were with Shivaji all along and all through, लगातार उनके साथ, उनके सपोर्ट में खड़े हुए थे. These were groups of highly mobile peasant pastoralists provided the backbone of the Maratha army. Okay, please understand. Groups of highly mobile. Abhi I am giving you the explanation. Peasant pastoralist. Peasant pastoralist. Peasant pastoralist जो थे उनको कुनबीज कहा जाता था. क्या थे? कुनबीज. Provided the backbone of the Maratha army. Now please understand the meaning. These were the groups of highly mobile. What is mobile? मोबाइल के साथ आप क्या करते हो? मोबाइल, हाँ, आपके जो मोबाइल आप यूज करते हो, यस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. मोबाइल मीन्स मोबाइल, कंटिन्यूअस आप उसको लेके घूम सकते हो. ऐसा नहीं ना कि एक जगह बैठ के बात करनी है. मोबाइल मीन्स मोबाइल हु आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. मोबाइल. गॉट इट? लगातार जो घूमते रहते थे. ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल. रात में सो रहे हैं, आके शिवाजी के एजेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि अभी चलो, अभी वॉर करना है, रात के 12 बजे हैं. दे आर रेडी. जब जहां जाना है, जैसे जाना है, दे आर ऑलवेज रेडी. मोबाइल. अनदर इज peasant pastoralist. Who are the pastoralist? Yes, this meaning you have to give me. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, but still I would like to have an explanation from your side as well. मुझे आपसे भी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद है. पेस्टोरलिस्ट कौन थे? These were the people who were moving from one place to the other place along with their pet animals. Cattle, गाय, भेड़, बकरी, बैल, all these
ठीक है, इनके साथ जो ये मूव कर रहे हैं एंड द पीपल हु डिपेंड ऑन द एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यस, दूध बेच के, घी बेच के, दही बेच के, पनीर बेच के, ये सारा कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम दीज एनिमल्स। तो जो ये काम करते हैं दे आर कॉल्ड एज पेस्टोरलिस्ट। क्या कहते हैं? पेस्टोरलिस्ट। एंड दे वर पीजेंट्स ऑल्सो, दे वर पेस्टोरलिस्ट ऑल्सो। जहां मौका मिलता है वहां खेती भी कर लेते थे, या जब खेती का मौका नहीं मिलता था तो मूव करने लगते थे, पेस्टोरलिस्ट पीपल। तो मराठा आर्मी के ये बैकबोन थे, वेरी स्ट्रेंथफुल मीन्स, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, किसी से डरते नहीं थे, और जो भी सामने आता था उसके लिए चैलेंज बनाते थे। सो बैकबोन ऑफ मराठा आर्मी, शिवाजी यूज्ड दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। जो भी मुगल्स इधर आने की कोशिश कर रहे थे ये हमेशा तैयार रहते थे। पीजेंट पेस्टोरलिस्ट जो थे, जो गाय भेड़ बकरी रखते थे, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज कुनबीज। क्या कहते थे? कुनबीज। प्लीज रिमेंबर दैट दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज कुनबीज। नाउ they were Shivaji used these forces to challenge the Mughals in the peninsula. इन लोगों को यूज किया शिवाजी ने। जब भी मुगल आते थे या मुगल यूज टू डोमिनेट द मराठास, तो ये आर्मी इनकी हमेशा तैयार रहती थी। शिवाजी के डेथ के बाद क्या हुआ? मराठा स्टेट वॉज विल्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स। ठीक है, चित्पावन ब्राह्मण्स जो शिवाजी के सक्सेसर थे, जो शिवाजी को सर्व करते थे, जिन्होंने शिवाजी का बहुत साथ दिया था, दे वर कॉल्ड एज पेशवा। क्या कहते थे? पेशवा। द प्रिंसिपल मिनिस्टर, द टॉप मोस्ट मिनिस्टर, द पावरफुल मिनिस्टर, दे वर द पेशवास। ओके, सो after the death of शिवाजी, ठीक है, power went in the hands of शिवाजी के डेथ के बाद ऑल दिस पावर वेंट इन द हैंड्स ऑफ चित्तपावन ब्राह्मण्स। चित्तपावन ब्राह्मण्स, ओके, हु सर्व शिवाजी, शिवाजी सक्सेसर। शिवाजी के बाद जितने भी लोग थे उनको इन्होंने सर्व किया था, एंड दे वर कॉल्ड एज पेशवा। चित्तपावन ब्राह्मण्स, and they were called as Peshwas or principal minister. The topmost ministers. And the capital of the Marathas. Marathas' capital was Pune. Pune became the capital of the Maratha kingdom. आप ये सोचो कि मराठास की जब हम बात कर रहे हैं, शिवाजी की बात कर रहे हैं, शिवाजी was क्या, is one of the most respected generals in this area, जहाँ पे कि the Mughal, जहाँ पे I mean Maharashtra is there, the Maharashtrian people where they are living, वहाँ पे still he is a very revered person. Pune became the capital of Maratha kingdom. Got it? Marathas are
established themselves in a very powerful manner. And under the Peshwas, ये जो Peshwas थे, Marathas developed a very successful military organization. ये जो Peshwas थे, the principal ministers who were serving Shivaji. आफ्टर शिवाजी के बाद चित्तपवन जो ब्राह्मण्स थे उनको ये पेशवास जो सर्व करते थे, दे टुक द पावर इन देयर हैंड्स एंड दे बिकेम वेरी पावरफुल. सो मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल military organization. इनका military power was unmatched and fortified areas. इनका success क्या था? They bypassed the fortified areas of the Mughals by raiding cities and by engaging the Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcements could be easily disturbed. अब इसको समझो. Please understand. Yes, I'm explaining it to you. Why? Because I know that there are certain words. Peshwas, remember, Peshwas, they are the principal ministers, the biggest ministers. Okay. Marathas developed a military organization, यहाँ तक तो it is clear, and their success lay, okay, in bypassing the fortified areas of Mughals. कैसे? By raiding the cities, and engaging Mughal army, okay, engaging this Mughal army in areas where their supply was Mughal armies where their supply was disturbed. ठीक है, सप्लाई कह लो, सप्लाई लाइन्स एंड reinforcements could be disturbed. अब जैसे क्या किया इन्होंने कि मुगल्स का किला है, मुगल्स आर लिविंग देयर, बिग फोर्ट्स आर देयर, किला, यू अंडरस्टैंड ना, किले बन गए, यस, द फोर्टिफाइड एरियाज आर देयर. ये क्या करते थे, वहां पे अचानक से अटैक, कोई फोर्ट पे तो नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आर्मी इज ऑलवेज रेडी. तो फोर्टिफाइड एरियाज जो थे मुगल्स के, दे वेर रेडिंग द सिटीज, अचानक से आके सिटी के ऊपर हमला कर देते थे. एंड मुगल आर्मीज वेर एंगेज्ड इन दैट. सो आर्मी जहां पे है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेयर आर्मी इज देयर कंटिन्यूअस फूड इज नीडेड, फूड रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी देयर, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस, जो भी मुगल आर्मी को चाहिए, जिस रास्ते से वो आ रहा है उस रास्ते को वो ये रोक देते थे. दे यूज्ड टू स्टॉप दैट पाथ. हाँ, और वहां से जो भी आर्मी जा रही है उसको ये रोक के अटैक करते थे. दे यूज्ड टू अटैक. प्लीज अंडरस्टैंड, द इट वाज द सप्लाई लाइंस.
सप्लाई, जहां से सप्लाई जा रही है उस जगह पे, तो अब क्या होगा, मुगल आर्मी ऐसे ही, मतलब फाइट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू फाइट विद द मुगल आर्मी, वो ऐसे ही भूखे ही मर जाएंगे, खाना ही नहीं पहुंच रहा है। बिकॉज जब भी खाना लेके जाते हैं तो वो अटैक कर देते हैं, जहां से खाना वाना जा रहा है वो सब लूट पाट के ले जाते थे। रीइंफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब्ड, कि मुगल फोर्ट है, कहीं से खाना आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, द क्लोथ दैट इज कमिंग, लॉट ऑफ ट्रेडिंग इज हैपनिंग, सो दे यूज टू अटैक दीज पीपल। मुगल्स को परेशान करने वाली बात थी। तो अब मुगल्स का आप समझ लो, इट वॉज सच अ बिग चैलेंज फॉर द मुगल्स। मुगल्स डिड नॉट नो हाउ टू tackle this situation. Okay, I hope it is clear. Supply lines and reinforcement. Reinforcement means army is fighting somewhere, so they need continuously they need some money, some food, clothes, medicines, reinforcement, so that army keeps on fighting. तो उस रास्ते को ही रोक देते थे. They used to stop that path. They used to attack on the people who were carrying all these things for the army. Got it? 1720 to 1761, Maratha Empire expanded. बढ़ते चले जा रहे थे ना, इनको रोकने के लिए कोई था नहीं, nobody can stop them. Between 1720 and 1761, the Maratha Empire expanded. Maratha Empire expanded. बढ़ता चला गया ना. Maratha Empire was beginning to spread, and it chipped away at the authority of the Mughal Empire. It gradually chipped away. बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि now they are not going to be a part of the Mughal Empire, और मुगल एम्पायर की कोई भी नॉनसेंस वो सहने के लिए तैयार नहीं थे. They were not ready to tolerate anything that was coming from the Mughal side. So Malwa and Gujarat were seized from the Mughals. Malwa and Gujarat were seized from the Mughals. मुगल से इन्होंने कैप्चर कर लिया by the 1720s. Okay, and by 1730s क्या हुआ, मराठा किंग was recognized as the overlord of the Deccan Peninsula. Deccan means south. साउथ के सबसे पावरफुल लीडर वॉज द मराठा किंग. एक्चुअली वन नेम इज नॉट गिवन बिकॉज डिफरेंट टाइम्स देयर वर डिफरेंट किंग्स. ओके, सो मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज, सबसे ज्यादा पावरफुल इसको इन्होंने मान लिया, रिकॉग्नाइज्ड as the overlord of Deccan Peninsula. साउथ के सबसे पावरफुल लोगों में इनको मान लिया गया. साउथ के सबसे पावरफुल में इनको ही एक्सेप्ट कर लिया गया. पीपल वेर ऑल्सो हैप्पी एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ द मुगल रूल एंड गेटिंग न्यू रूलर्स लाइक द मराठास. दैट वॉज एक्सेप्टेड एंड वेलकम्ड बाय द पीपल इन द साउथ. दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट द मुगल्स टू बी देयर. एंड मराठा किंग्स, whoever was the king, they got the right to collect Chauth and Sardeshmukhi. Yes, now what is Chauth and Sardeshmukhi? Because Maratha kings have established themselves. So, Maratha kings got the right
to collect Chaudh and Sardeshmukhi. क्या था? What was this Chaudh and Sardeshmukhi? Yes, it is given there, children. You will be seeing it was a form of tax. ठीक है, क्योंकि अब एम्पायर चला रहे हैं, लोगों को हैप्पी भी कर रहे हैं. 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू आ रहा था उसका 25% वॉज क्लेम्ड बाय द जमींदार्स. तो डेक्कन में दिस वॉज कलेक्टेड बाय द मराठास. पहले क्या होता था, जमींदार्स यूज्ड टू कलेक्टेड. अभी जमींदार्स को बीच में से हटा के द कंप्लीट मनी वॉज गोइंग टू दी मराठास. उन्होंने कहा कि वही कलेक्ट करेंगे एंड दे विल बी लुकिंग आफ्टर द एम्पायर प्रॉपर्ली एंड गिविंग जस्टिस टू द पीपल. They wanted to help the people. Chauth was 25%. Chauth 1/4, चौथा पार्ट. ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस. जितना भी 100 है तो 100 में से 25 रुपीज वॉज टू बी सबमिटेड टू दी मराठास एज टैक्स. चौथ. ओके, एंड this was collected by the Marathas. Sardeshmukhi was 9 to 10% of the land revenue paid to the head revenue collector of the Deccan. जो revenue collector है उसको 9 to 10% of money was to be given. Whatever was being taken, whatever was being calculated, उसका 9 to 10% land revenue was to be paid to the head revenue collector of the Deccan. साउथ के जो रेवेन्यू कलेक्टर हैं उनको 9 to 10% जो है वो लैंड रेवेन्यू देना था इन लोगों को. सो दिस इज व्हाट वाज द मराठा पावर कमिंग अप. 2-3 चीजें और बची हुई हैं. आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन. ओके चिल्ड्रन. So students, today we have talked about Shivaji. You can see the portrait of Shivaji here. One of the very inspiring personalities in the Indian history. Got it? So you can see, and some informations about Shivaji is given here. What are these informations? Towards the end of 17th century, a powerful state was emerging Deccan में under the leadership, because Shivaji was such a person that he really inspired the people a lot. लोगों को इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी. तो बहुत ही एक पावरफुल स्टेट इमर्ज हो रहा था इन द डेक्कन रीजन शिवाजी के अंडर में. एंड इसके बाद मराठा स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम. He is the person who is responsible to establish and lay down the foundation of the Maratha state. शिवाजी के माता पिता का नाम. You must always know about such great figures. इतने जो महान लोग होते हैं उनके बारे में ज़रूर पता करना चाहिए. Those who have contributed a lot for the upliftment of the country, for the betterment of the country. Maratha state was established and Shivaji जो है he was born to शाहजी एंड जीजाबाई. ठीक है, शाहजी इनके पिताजी का नाम था, जीजाबाई इनकी माताजी का नाम था. कहाँ पे ही वॉज बॉर्न? ही वॉज बॉर्न एट शिवनेरी 1630 में शिवनेरी में ही वॉज बॉर्न. एंड दादा कोंडदेव वॉज देयर एंड हिज मदर जीजाबाई. ही बिकेम सच अ ग्रेट वॉरियर. इतने महान जो ये सोल्जर बने, इसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? दैट इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड हियर. अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्जियन दादा कोंडदेव, शिवाजी हैड अ वेरी ग्रेट करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट. जहाँ भी जाते थे वहाँ से जीत लेते थे. ठीक है, बहुत कम एज में. एंड इन्होंने क्या किया? ही हैड ऑक्यूपाइड जावली and he was the undisputed leader of Mawala Highlands.
मवाला आई मीन जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के तरफ दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लैंड फीचर मवाला विच पेव्ड द वे फॉर फर्दर एक्सपेंशन। आगे भी ये लोग बढ़ते चले गए। तो बीजापुर में मुगल्स के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई एंड ही बिकेम अ लेजेंडरी फिगर। इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता था, ही वॉज गोइंग फॉर अ गुर्रिला वॉरफेयर। गुर्रिला वॉरफेयर जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था चैप्टर में, दीज पीपल छुप के बैठते हैं और अचानक से दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो चौथ एंड सर देशमुखी वाला जो आइडिया था अबाउट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, दैट वाज हिज आइडिया एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट। ठीक है, दिस इज़ वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट शिवाजी। Just wanted to share this. Rest we will be doing it in the next class. Okay, till then children, thank you so much and all the best to you.